Hello everyone, myself Sanjay Roy. Uh, Welcome to my YouTube channel, Gurukul Educational Gurukul Academy of Chemistry by Sanjay Roy. Right? In last class, we can discuss about alcohol, phenol, ether, their introduction part as well as classification. Right? Now, in today's class, we can discuss about how will you write the name of that alcohol. What are the steps involved to write the name of alcohol that we can study in this class. Okay guys, I hope you can enjoy the video and also like and subscribe. Please tell to other and your friends, right? They can subscribe my channel and give lot of love to me. Okay, so now we can start with the first. We can start with the nomenclature of alcohol. Can start with the nomenclature of alcohol, phenol, and ether, right? So basically, how will you write the name of alcohol, phenol, and ether? So we can start with the first, that is alcohol. Now we know that what is alcohol. Alcohols are the hydroxy derivative of alkane, is called as alcohol, right? Today we can discuss about nomenclature. So there are three ways by which we can write the name of alcohol. The first one is common name, second one is carbonyl system, and third one is a IUPAC system. And IUPAC system is a most important because it is universally accepted. For example, अगर किसी का नाम मान लो मेरा ही नाम लेता, मेरा नाम संजय है और इन फ्यूचर में अगर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, राइट, और मैं फॉरेन जाके क्या कर रहा हूँ, अपना रिसर्च पर कंप्लीट कर रहा हूँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बट मान लो किसी, मेरा घर का नाम क्या है, सपोज हर किसका घर का नाम रहता है, घर का नाम कुछ अमुक है, अब वहां यूनिवर्सिटी जाके कोई मुझे उस नाम से बुलाएगा तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। हाँ, बट अगर कोई संजय नाम से बुलाता है तो दे कैन रिकॉग्नाइज। तो संजय इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट जो घर का नाम रहता है वो पर्टिकुलर लोकेलिटी, पर्टिकुलर बच्चों तक ही क्या रहता है, अपना इंपॉर्टेंस रहता है, उसके बाहर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द कॉमन एज वेल एज IUPAC name of alcohol, right? So let's start with our first video. So here we can write the common name as well as IUPAC name. The first we can discuss about the common name of alcohol. How will you write the name of alcohol, right? Common name is also called as travel name. Common name को दूसरा और क्या बोला जाता है? Travel name. So we can start with the common name. First, we can start with the common name. The common name is what? The name which can recognize in particular, we can say that locality is called its common name. So the common name of, first we can discuss alcohol. So in alcohol, we know that alcohol are prepared by replacing hydrogen atom by OH. ये हमने देखा है, राइट? डेफिनेशन से, बेसिक डेफिनेशन में चीज हमने देखा हुआ, राइट? यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाला और यहाँ पे OH ग्रुप को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, राइट? ना अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्केन, राइट? अब यहाँ पे क्या किया हमने, जब भी किसी अल्केन में से अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं, मींस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई ना। इस टाइम पे क्या होता है, ये तुम्हारा नाम क्या है, अल्केन, और इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो नाम में क्या चेंज आता है, द ANE पार्ट ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वायल। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्काइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अल्काइल,
अब क्योंकि इस अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सिर्फ आर ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप के साथ मैंने क्या लगा दिया, OH। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, OH group is called as hydroxy group। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अल्काइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल। यू कैन पुट द नेम अल्कोहल। सो इन कॉमन नेम हम लोग अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द कॉमन नेम। फर्स्ट यू कैन राइट अल्काइल ग्रुप followed by word alcohol। This is the process by which we can write the name of alcohol। So first you can write the alkyl group followed by word alcohol, that is the common name of alcohol। Now alkyl group क्या होंगे, कितने टाइप के alkyl group रहते हैं, तो there are so many type of alkyl group। Alkyl group may be primary, may be secondary, may be tertiary। Primary again classified into N-alkyl group, isoalkyl group as well as neo। क्या होता है, पहले इसको हम लोग ब्रीफली इसको हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट, तब तक आप ये स्लाइड देखिए जहां पे हम लोग दिखा सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जस्ट ओवरलुक दैट स्लाइड। So next we can discuss about alkyl group। मैं यहाँ पे इसका brief classification लिखता हूँ। तो alkyl group are classified into mainly 3 type। alkyl group को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट प्राइमरी alkyl group, दूसरा secondary alkyl group, and third one is tertiary alkyl group। So there are 3 type of alkyl group: primary alkyl group, secondary and tertiary। Now we know that primary carbon, क्या होता है हमको पता है। Primary carbon means the carbon which is attached with the only hydrogen, or which can attach with the only one other carbon atom, is called as primary alkyl group। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं। राइट, सो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप is the carbon having that skeleton is called as primary। Now this R group may be alkyl, R may be any alkyl, or it may be hydrogen, but remaining these 2 valency can be satisfied by hydrogen। This carbon is called as primary carbon, and if OH group attached to this carbon, it is called primary alkyl, and this carbon is called, and this group is called as primary alkyl group। Why primary alkyl? Because this group consists, this carbon is attached to only one other carbon atom, that's why we can consider it as right। now अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, primary alkyl group। secondary means what, similarly RCR H, this carbon is called as secondary carbon। why it is called as secondary carbon, secondary carbon क्यों बोले, because the carbon which is attached with the 2 other carbon atom, और हमने इस कार्बन से क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, that's why this carbon is called as secondary carbon। राइट, थर्ड हम लोग जाते हैं टर्शियरी पे। तो टर्शियरी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन टर्शियरी वी कैन राइट RCR। This carbon is called as tertiary। Now why it is called tertiary, just look at there, why it is called tertiary, because in this case the carbon attached with the 3 other carbon atom, that's why it is called as tertiary। right, so if you use secondary alkyl group, use prefix। हम लोग क्या यूज करेंगे, prefix। for that prefix क्या यूज करते हैं, से। और सेकेंडरी यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, थर्ड और टर्शियरी। जैसे प्राइमरी के लिए क्या यूज करेंगे, प्राइ, नो we cannot use the word pri। here the primary alkyl group again classified into 3 types।
प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप में। पहला जो रहता है एन अल्काइल, सेकंड वन क्या रहता है आइसो अल्काइल, एंड थर्ड वन क्या रहता है नियो अल्काइल। ठीक है, एन अल्काइल, आइसो अल्काइल एंड नियो अल्काइल। इन दिस वे वी कैन यूज। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं कि एन अल्काइल क्या होता है, आइसो अल्काइल क्या होता है, नियो अल्काइल क्या होता है। तो एन अल्काइल मीन्स व्हाट? सो एन means all the carbon atom are in straight chain, means there is a no branching। नारियल का पेड़ एग्जांपल ले सकते हैं, नारियल के पेड़ में कोई ब्रांचिंग रहता है क्या? नहीं। in this way n means what? all the carbon atom are present in a straight chain, or we can say that only one chain, and that's why it is called as n alkyl group। if there is a branching it is called as iso। अब ब्रांचिंग कहां पे होगा? एक ही ब्रांच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो। भी कहां होना चाहिए? सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप रहता है देन उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइसो। राइट, तो यहां पे हम लोग देखते हैं एन अल्काइल, आइसो अल्काइल एंड नियो अल्काइल। यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी जस्ट टेक द वन एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3। अब here we can take 5 कार्बन। तो यहाँ पे 5 कार्बन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे देखो all these 5 कार्बन are present in a straight chain। Am I right? All the 5 कार्बन atom are present in a straight chain। अब मैं इसको प्राइमरी बनाना है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट कार्बन से निकालेंगे जो होगी प्राइमरी, एंड it is comes under primary because hydrogen are removed from the primary carbon and all the carbon atom are present in a straight chain। That's why we can use the prefix n। हम लोग prefix क्या यूज करते हैं? n। सेकंड केस में आते हैं आइसो। इसमें क्या होता है? सेम हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट चेन ही है। दिस 4 कार्बन स्ट्रेट चेन हैविंग वन ब्रांच दैट इज CH3 ग्रुप। एम आई राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस CH3 ग्रुप में जब सेकंड कार्बन में, सेकंड कार्बन को यहाँ से नंबरिंग करो 1 2, सेकंड कार्बन में CH3 ग्रुप है। तो अगर सेकंड कार्बन में CH3 ग्रुप है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन मान लो यहाँ से निकाल देते हैं, हाइड्रोजन कहां से निकला है तुम्हारा? प्राइमरी कार्बन से। तो क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो गया। बट साथ में यहाँ पे एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसो। ऐसा अगर सिचुएशन रहता है तो हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? आइसो। क्या यूज करेंगे? आइसो। नियो के केस में क्या रहता है? सपोज वी जस्ट टेक एग्जांपल C CH3 CH3 CH3। Here also there are 5 carbon, but in this case 3 carbon is straight chain, 2 is branching। So if 2 methyl group are present on, just look at there, if 2 methyl group are present on second carbon, it is called as neo। But condition is that the hydrogen must be removed from प्राइमरी कार्बन। हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना चाहिए? प्राइमरी कार्बन से। इन दिस वे वी कैन यूज एन अल्काइल, आइसो अल्काइल एज वेल एज मीन। अब सर यहाँ पे सिंक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिंक के एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं? यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। हियर वी जस्ट टेक द एग्जांपल CH3 CH CH2 CH2 CH3। यहाँ पे मैंने 5 कार्बन लिया। तो सर ये N और सिंक में क्या डिफरेंस रहेगा? यहाँ पे डिफरेंस देखिए, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कहां से निकाल रहा हूं? इस कार्बन से निकाल रहा हूं। नाउ ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है। क्यों है? बिकॉज ये कार्बन इसको अटैच है, 2 और कार्बन को अटैच है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोला जाता है। Am I right? यहां तक बात क्लियर हुआ? राइट। अब यहाँ पे हम लोग टर्शियरी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। CH3C CH3 CH3 CH2 CH3। अब सर ये तो आइसो के जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन हम लोग, यहाँ का हाइड्रोजन हम लोग बाहर निकालते हैं इस कार्बन का। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ का हाइड्रोजन निकला, दिस कार्बन इज अ टर्शियरी। नाउ व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दिस एग्जांपल्स? अगर हम लोग ये सारे एग्जांपल्स में देखेंगे तो क्या कॉमन दिखता है? ऑल कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन।
ना 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 कार्बन रहा तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट। अब हाइड्रोजन निकालो तो क्या रहेगा, अल्काइल, जिसको पेंटाइल बोलेंगे। इट इज ऑल्सो पेंटाइल, it is also pentyl, it is also pentyl, and this one also pentyl. All these examples are pentyl. Then how will you differentiate them, right? तो इसको differentiate करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, pentyl के सामने अगर मैं n लगा देता हूं तो हमको क्या समझ में आएगा, all the 5 carbon are present in a straight chain. बात समझ में आई, all the 5 carbon are present in a straight chain and hydrogen is removed from first carbon. If it is iso, hydrogen is removed from first carbon, but the longest chain consists of one methyl group on second carbon, then we can use the word iso. And if hydrogen is removed from primary carbon or first carbon and the second carbon consists of two methyl group, it is called as. Similarly, if hydrogen is removed from secondary carbon, it is called as sec, and if hydrogen is removed from tertiary carbon, it is called as ter. यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, prefix. Here we can use iso, here we can use neo, here we can use sec, here we can use ter. So this is the prefix indicate the arrangement of carbon atom, how these carbon atom are connected with each other. That can be explained in this form. Now rest, if we put OH group here, तो ये कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं सबका। अगर मैंने सब जगह OH ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ना इसका भी कॉमन नेम n pentyl, isopentyl, neopentyl, secondary pentyl and tertiary pentyl. So these are the some examples, right? So first in common name you must identify alkyl group. After identifying the alkyl group, you can put alcohol. तो अगर हम लोग देखते हैं, the common name of alcohol phenol can be written as alcohol, alkyl followed by word alcohol. Now we just discuss about one or two examples. Suppose CH3, CH2, CH, CH3OH. इसको क्या बोलेंगे सर? So first you can see the number of carbon atom. Number of carbon atom is 4. 4 carbon atom रहा तो क्या बोलते हैं? ये पता है ना सबको? अगर यहाँ पे एक कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं? मिथ. 2 कार्बन रहा तो एक, 3 कार्बन रहा तो प्रोप, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहा तो पेंट, 6 कार्बन रहा तो हेक्स, 7 कार्बन रहा तो हेप, और समटाइम इट इज कॉल्ड एज सेप्ट. 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नोन, 10 कार्बन इज कॉल्ड एज डेक. राइट, ये आपको पता है, हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीजें. फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज कर दिया हूं. तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 4 कार्बन है तो ब्यूट. Now which bute? N-bute, isobute, neo-bute, sec-bute, tert-bute. Right? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है उसको देखो. तो यहाँ पे ये कार्बन कितने और कार्बन को अटैच है? This carbon is attached with the 2 other carbon atom in the first position. It is called as sec. तो हम लोग क्या लगा देंगे? sec. Because यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्यूटाइल. तो सेकेंडरी ब्यूटाइल followed by word alcohol. So the name of this compound is secondary butyl alcohol. Friends, इस तरीके से हमको अल्कोहल फिनॉल ईथर का कॉमन नेम लिखते आना चाहिए. Right? You just recall once more time. There are some examples are given in slide. You just go through that examples. For example, this one. First example, you can consider there are total 5 carbon with OH group. That's why all the carbon atom is straight chain. That's why we can call N-pentyl followed by word alcohol. Here in this case, you see 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. That's why we can take hexyl. Right? Why we can take iso? Because second carbon consists of methyl group. That's why we can take iso. OH group पे करके इसको क्या बोले? Isohexyl alcohol. Third example, you just take hydrogen is removed from primary carbon. That's why it can becomes under primary alkyl group. But in this case, the second carbon consists of 2 methyl group.
Overall total number of carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? That's why it is called as neohexyl alcohol. You just take this example 1, 2, 3, 4. Total 5 carbon atom, which recently we can take this example. Now this carbon is a tertiary because it is attached with the 3 other carbon atom, and here it consists of OH group, and that's why it is called as tert because this carbon is tertiary. Pentyl means total number of 5 carbon followed by what? Alcohol. Here sec butyl alcohol. Why it can sec? Because this carbon is a secondary carbon because this carbon attached with the 2 other carbon atom. You just see, right? That's what is called as secondary butyl alcohol. So by using that rule, we can write the name of any alcohol, right? Now this is called as common name. After common name, we just move on the second slide. This is the new type of nomenclature that can be included in your state board syllabus recently by the Maharashtra government, right? And that nomenclature is called as carbinol system. This nomenclature is called as carbinol system. कॉमन नेम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बिनॉल सिस्टम. You just relook the slide. What is it by carbinol system? The alcohol are considered as derivative of methyl alcohol, which is called as carbinol. ना यहाँ पे इसका मीनिंग समझ में आया? Alcohols are considered as derivative of methyl alcohol. Derivative means the compound which is obtained from one compound. जैसे हमने एक बाइक खरीदा है, उस बाइक को अगर हमने मॉडिफाइड किया है तो क्या हो जाएगा? बाइक इज अ डेरिवेटिव. अगर मान लो हमने कोई स्प्लेंडर खरीदा और उसको हमने पल्सर का लुक दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ दैट स्प्लेंडर. तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल मींस व्हाट? सबसे पहले हम लोग उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं. मिथाइल अल्कोहल मींस क्या होता है? नाउ वी नो दैट मीथ मींस वन कार्बन एटम एंड वाइल मींस फर्स्ट कार्बन एटम से हमने क्या किया? हाइड्रोजन निकाला है. यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? CH3OH. This is the general structure of methyl alcohol, right? अब इसका डेरिवेटिव मींस व्हाट? अगर हम लोग इस मिथाइल ग्रुप में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लगाते हैं, कोई और अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ दिस. सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? जब मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया तो क्या बचेगा मेरे पास? CH2OH. मींस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई. एक क्या है हमारा वैलेंसी? इट रिमेन. और यहाँ पे मैंने अगर R ग्रुप लगा दिया तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल. तो हम लोगों ने क्या बोले हैं? मिथाइल अल्कोहल. और ये जो नया कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल. अब ये जो तुम्हारा ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बिनॉल ग्रुप. इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल. और ये जो R ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्काइल ग्रुप. तो जब भी हमको कार्बिनॉल सिस्टम में लिखना है तो कार्बिनॉल मींस क्या रहता है? इट इज अ मिथाइल अल्कोहल डेरिवेटिव. जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा, एक बार फिर से उसको तुम लोग देख लीजो. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्कोहल आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल व्हिच इज कॉल्ड कार्बिनॉल. जिसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग? अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड कार्बिनॉल. जिसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं alkyl followed by word carbinol. Alkyl followed by word carbinol. This is the way by which we can write the common name of the system. यहाँ तक बात समझ में आई? alkyl group followed by word carbinol. ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? Now we just take one example. तुम्हारे स्क्रीन पे देखो कुछ एग्जांपल दिया, उसमें हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. CH3 CH2OH.
अब इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? दो कार्बन है मतलब क्या है? इथाइल है, बराबर है। अल्कोहल है तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। बट इन कार्बिनॉल सिस्टम में हम लोगों ने क्या लिखे? डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ग्रुप कौन सा था? अगर हम लोग देखेंगे तो CH2OH is called as methyl alcohol group, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3. CH3 means what? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल कार्बिनॉल। Name of this compound is methyl carbinol. तो कार्बिनॉल सिस्टम लोग ऐसे लिखेंगे. Suppose we just take the example of, we take another example, CH3 CH2 CH2OH. Now first you can identify the carbinol. Carbinol means methyl alcohol. बेटा नया है, थोड़ा सा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार तुमको समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कार्बिनॉल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो. यस, CH2OH group is called as carbinol group. अब यहाँ पर इसके अलावा कौन सा बचा है तुम्हारे पास? CH3 CH2 मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल. इथाइल ईथ मतलब टू कार्बन, वाइल मतलब हाइड्रोजन निकाला है, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल कार्बिनॉल. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल कार्बिनॉल. तो लाइकवाइज वी कैन टेक मेनी एग्जांपल्स. यहाँ पे हमारे स्लाइड में देखो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल. नाउ हियर take the third example. Secondary butyl carbinol. Why it is called secondary butyl carbinol? You just see total number of carbon 1 2. यहाँ पे दो कार्बन है 3 4, राइट? याद होगा, समझ में आई? अब यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी कार्बन मतलब दिस कार्बन अटैच विद टू अदर कार्बन एटम. इसको अगर हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते तो कैसे लिख सकते? CH3C CH2 CH3 CHOH, सॉरी CH2OH. अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने ये ग्रुप लगाया. अब ये सेकेंडरी कार्बन है, am I right? Because it attached with the two. अब इसको कंसीडर नहीं करना है, नहीं तो बोलोगे सर तो तीन को अटैच है, इसको नहीं. ये अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप क्या आ जाएगा अब यहाँ पे? CH2 CH3. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये कार्बन तो तीन कार्बन से अटैच है, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि YSO है? वो सेकेंडरी है, कैसे आप बोल रहे हो? वो तो टर्शियरी होना चाहिए. बट बेटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है? इसको छोड़ दो. अब ये क्या हो गया तुम्हारा? कार्बोनाइल ग्रुप हो गया. ये अल्काइल ग्रुप है. ये कार्बन कितने कार्बन का अटैच है? दो कार्बन का अटैच है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज. अब यहाँ पे सेकेंडरी करके हम लोगों ने सेक लगाया, टोटल कार्बन 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल. दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल. आई बात समझ में? इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में क्या देखा है? कॉमन नेम एज वेल एज कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ अल्कोहल. बेटा नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्जाम में तुमको कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहता है, यू मस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. Right? I hope you can understand all these things. If not, please rewind the video and watch once again. And if you face any difficulty, you can comment me on my inbox, or if you have my number, especially the student which belongs to my class, my offline classes, right? They can WhatsApp me or they can directly call me. Okay, friends. So please, if you like this video, please subscribe the video, as well as also tell your friends to subscribe my channel so that I can send more and more video. Thank you and have a nice day.